In last lecture, we have discussed about the pedagogy and the syllabus of MAD, right? Uh, Today we will see the practical list as this is our first lab, and we'll install the Android Studio and we'll do the first and second practical. Okay. Uh, how many of you have already installed Android Studio and successfully run the first application of Hello World? Uh, Please raise your hand. So, okay. Okay, almost 22 students have successfully installed Android Studio and run the Hello World application. Okay, good. Uh, Everyone can hand down. For those students who have not installed Android Studio yet, I'm sharing the link for the download option. Okay, you can download from there. And I have already shared the installation steps, so you can uh, go through it if you are finding any difficulty. Okay, and one more thing, as you will install the Android Studio, like while creating your first project, or I can say while creating your first application, it will take a little bit more time because like for the first application, it will configure all of its settings. So wait for that. Okay. Divyam, your hand is still raised. Are you having any query? Okay. No, ma'am. Okay. Okay. So here is the practical list of Android. So let's just go through it. So we'll get to know that which are the practicals that will be covered in throughout the semester. So the first one is installation and configuration of Android Studio along with its major Gradle, SDK and AVD, etc. Right. So basically you have to just install and configure the Android Studio. That is your first project, and you have to take screenshots of steps and like mention in one document. Okay. Then the second one, introduction to Android and create custom message application that will display custom message in the middle of the screen in the black color and with the yellow background. So basically you have to create an application with the custom message as a text, and the background should be yellow. Then in practical number 2, there are total 3 sub practicals, right? So the first one is creating a simple calculator. So basically simple mathematical operations like addition, subtraction, division, multiplication, you have to perform, right? Then the next one is related to login. So basically you have to create a login activity. Okay, here in Android, activity is nothing but a page. You can consider it like, for example, you are creating pages in website, right? Different pages for different tabs. The same way here, we create activity. Okay, so you have to create an activity for username and password, and
you have to perform some task related to it, as in अगर कैसे username and password correct है, then you have to print the message of successful login and with green background, right? And if it's wrong, right, incorrect, then at that time the background should be red and similar message should be displayed, right? Then the third one is disabling the login button. तो आपको क्या करना है कि लॉगिन बटन को डिसेबल करना है. डिसेबल एज इन डिलीट नहीं करना है, ठीक है, ना तो इनविजिबल करना है. डिसेबल एज इन द बटन शुड बी देयर बट इट शुड नॉट बी क्लिकेबल. ओके. Then the fourth one, close application if user selects cancel button. And the last one in second practical is creating creating application for life cycle of activity. So in this practical, you will create an activity for the life cycle. Okay. तो स्टेप बाय स्टेप मतलब कौन सी मेथड कॉल करते हो, तो कैसे, सॉरी आई मेंट कि कौन सी मेथड कब एग्जीक्यूट होती है इन एक्टिविटी लाइफ साइकिल. ओके, दैट विल बी लर्न्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल. आफ्टर दैट लिस्ट व्यू इज देयर. तो लिस्ट व्यू क्या होता है कि जैसे यस ऑल ऑफ यू यूज व्हाट्सएप, राइट? तो उसमें कैसे आपका स्क्रोलेबल चैट है, राइट? दैट इज अ काइंड ऑफ लिस्ट व्यू. बट द थिंग इज वो कंपोजिट लिस्ट व्यू है, मतलब एक से ज्यादा तरह के कंपोनेंट एक सिंगल टैब में है. जैसे कि नाम है, उसके बाद नीचे टेक्स्ट है, जो भी मैसेज आपके फ्रेंड ने आपको भेजा है वो, ठीक है. सो दैट इज कंपोजिट. बट सिंपल लिस्ट व्यू में क्या होता है, सेम तरीके की इंफॉर्मेशन लिस्ट की होती है. फॉर एग्जाम्पल योर सब्जेक्ट्स लिस्ट, like that, ठीक है. Then the next one is autocomplete text view. So what will be there in autocomplete text view? तो इसका भी लाइक आप सबने यूज किया होगा कि कैसे आप कुछ भी लिखते हो, कैसे नीचे सजेशन आ जाता है. दैट इज autocomplete text view. फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर आई एम सर्चिंग चारू सेट. So can you say here is the suggestion Charu set University, Charu set result, right? That is the part of autocomplete text. So we will learn that. Then after that we'll learn about radio button and how it will work, right? उसके बाद हम सीखेंगे सीक बार, रेटिंग बार, अलर्ट डायलॉग. अलर्ट डायलॉग आई होप आप सबको पता होगा कि कैसे आप कोई भी नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसके रिलेटेड कुछ परमिशंस के लिए आपको एक डायलॉग देते हैं कि ये करना है या वो करना है, लाइक कैंसल और अलाउ. दैट इज अ काइंड ऑफ अलर्ट डायलॉग. फिर कोई भी कैसे सपोज योर particular application is draining your battery, at that time also you can see the alert dialog, right? A little pop-up dialog box. So that is alert dialog. Then after that you will learn about linear layout. Okay, you will do the practical of linear layout. उसके बाद है create login application where you will have to validate email ID. Till the username and password is not validated, login button should remain disabled. On successful login, go to on new activity. So basically you have to validate your data or you can say email ID, ठीक है, और उसके बेस पे आगे कुछ टास्क परफॉर्म करने होंगे. Then you have to perform the menu options practical, ठीक है. उसके बाद हम menu options वाला सीखेंगे. And मेनू ऑप्शन आई होप आपको पता है. एक सिंपल सा इसका ही एग्जांपल देती हूँ. कैसे एंड्रॉइड में ही टॉप लेफ्ट कॉर्नर, नहीं सॉरी टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स जैसा है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो एक मेनू खुलता है, ठीक है. न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, व्हाट्सएप वेब एंड ऑल द थिंग्स. सो दैट इज मेनू ऑप्शन, जो एक लिस्ट खुलता है. ओके. देन create an application to make a phone call. So we will learn how to make a phone call from our application, right? We will learn that. उसके बाद ईमेल भेजना सीखेंगे हम. एक आप अपने फ्रेंड को
मेल भेजो फ्रॉम योर एप्लीकेशन. सो हाउ टू इंटीग्रेट दैट, वी विल लर्न दैट. ओके. उसके बाद कैसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा पास करते हैं वो सीखेंगे. एंड our ninth practical is related to SQLite database. ठीक है. In this practical we will learn to insert, update, delete and retrieve data from the SQLite database. Right. So I hope these terms are familiar to you as like you learned in previous semester DBMS, right? So ये सारे ऑपरेशन हम SQLite डेटाबेस पे परफॉर्म करेंगे. और उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 10 से 14 तक जो है, these are the part of iOS. So उसका बेसिक सीखेंगे, इंस्टॉलेशन एंड ऑल द थिंग्स. जैसे हमने एंड्रॉइड का अभी देखा कि कस्टम मैसेज वाला फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट किए थे, वैसे यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे. देन उसके जो कुछ कंट्रोल्स एंड व्यूज है उसके बारे में सीखेंगे. ठीक है. सो दैट इज द पार्ट ऑफ iOS. And there are few extra practicals which we will perform in between. Okay, so this is all about our practical list. Now let's see our software Android Studio. Okay, उसका बेसिक्स देख लेते हैं. बेसिक्स ऐसे कि उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स और यू कैन से टूल्स अवेलेबल है. तो कौन सा टूल किस तरीके से काम करता है, उसका क्या यूजेज है, ठीक है, वो देख लेते हैं. जिन लोगों ने अभी तक एंड्रॉयड इंस्टॉल नहीं किया है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करने रख दे. Before we start, can you start recording? हाँ. Recording. अरे अभी हाँ, अभी मैं कुछ कैसे नया नहीं सिखा रही हूँ. नया ऐसे कि एप्लीकेशन बनाना नहीं सिखा रही हूँ, बस आपको सॉफ्टवेयर एज एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, क्या क्या चीजें उसके अंदर. ठीक है. Yes. ठीक है. सो this is Android Studio. Yes. So if you want to create a new application or you can say a new project, at that time you have to go to this file. जैसे आप दूसरे सारे कैसे सॉफ्टवेयर्स में करते हो. ठीक है. Go to file, new and create new project. अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग कैसे प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसे ओपन करना है, देन यू कैन चूज ओपन ऑप्शन. अगर कैसे सपोज के आपके किसी फ्रेंड ने कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हो एंड्रॉइड में, ठीक है, और आपको वो यूज करना है, ठीक है, देन यू कैन चूज दिस ऑप्शन हियर, इंपोर्ट प्रोजेक्ट. ओके. इसके अलावा फाइल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. जैसे कि आपको एक कोई नई एक्टिविटी क्रिएट करनी हो, मतलब नया जावा क्लास लेना हो, या कोई इमेज इंसर्ट करवानी हो, राइट. देन कोई फ्रेगमेंट क्रिएट करना हो, फोल्डर क्रिएट करना हो, या कोई गूगल की सर्विस ऐड करनी हो. सो ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल ओवर हियर. ओके, यू कैन सी. देन एडिट. तो जैसे दूसरे में ऑप्शंस रहते हैं वैसे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, कॉपी पेस्ट एंड ऑल द थिंग्स. एंड यस, दिस वन इज यूजफुल, कॉपी पाथ. सो यू कैन कॉपी द पाथ. ओके. देन व्यू ऑप्शन. तो व्यू के रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है. जैसे कि आपको रिसेंट फाइल्स जो है वो एक्सेस करवानी हो तो यू कैन क्लिक ऑन दिस. तो आप देख सकते हो कि ये सारी फाइल्स है जो मैंने रिसेंट में यूज की थी. रिसेंट में एज कि कल CSC 1 वालों की लैब थी, तो कैसे उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये सारी फाइल्स ओपन की थी. सो दैट्स व्हाई दीज आर इन रिसेंट ऑप्शन. ओके. एंड यहाँ पे एक ऑप्शन और है, देखो, शोज चेंज ओनली. तो अगर कैसे कोई फाइल में चेंजेस किए हैं वही दिखाई दे वैसा आपको चाहिए तो क्लिक ऑन दिस. तो अब आप देख सकते हो कि सिर्फ 3 ऐसी फाइल है जिसमें चेंजेस किए थे XML में, राइट. सो दैट इज विजिबल. ओके. सो दैट वे दिस वन इज हेल्पफुल व्यू.
रिसेंटली चेंज्ड फाइल्स, तो वो सेम चीज आएगी, चेक्ड होके आएगा, पहले चेक नहीं था अभी चेक्ड होके आएगा, इट्स लाइक दैट। ओके, देन रिसेंट लोकेशन, रिसेंट कौन से लोकेशन पे काम किया था, लाइक दैट, राइट। तो दिस आर द ऑल द ऑप्शंस। देन टूल बार आपको दिखाना है नहीं दिखाना, स्टेटस बार, नेविगेशन बार विजिबल रखना है या नहीं रखना, वो सब आपको करना है तो यहाँ से कर सकते हो। इन शॉर्ट बेसिकली कि कैसे अगर गलती से आपसे टूल बार या स्टेटस बार कैंसल आउट हो गया, यू कैन लाइक अगेन मेक इट विजिबल फ्रॉम हियर। Okay, then there is an option for navigate. So navigation के related few things are available over here. ठीक है, आपको फाइल का पाथ चाहिए, स्ट्रक्चर देखना है, काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो। देन कोड, कोड के रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इंप्लीमेंट मेथड, ओवरराइड करनी हो कोई मेथड उसके रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपको कोई लाइन है उसे अपवर्ड मूव करवाना है, लाइक दैट। Then there is option for analyze, so आपको एनालिसिस करना हो, कोड क्लीन करना हो, उसके रिलेटेड यहाँ पे यूज कर सकते हो। Then refactor is there, so मूव करवाना हो, कॉपी करना हो, then like migrate करवाना हो ऐप कॉम्पैक्ट में, you can do it from here. Okay, फिर कैसे ओके, इन बिल्ड देयर इज अ मेक प्रोजेक्ट, तो क्या बोलते हैं, हाँ, आप कैसे सी में कंपाइल करके फिर रन करके कोई भी प्रोजेक्ट को या फिर फाइल को, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर आपको कंपाइल करना है और आई कैन यू कैन से प्रोजेक्ट क्रिएट करवाना है, वैसे मतलब कोडिंग कर लेने के बाद और यू कैन से चेंजेस कर लेने के बाद, एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस मेक प्रोजेक्ट ऑप्शन। ओके, वैसे ही मेक ऐप है, मेक मॉड्यूल ऐप, देन यू कैन बिल्ड टाइप्स को एडिट कर सकते हो, ऑल द थिंग्स, इवन यू कैन क्लीन द प्रोजेक्ट फ्रॉम हियर। तो आपको अननेसेसरी चीजें रिमूव करवा देनी हो, आपने चेंजेस किए उसके बाद, देन यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। आपकी जो एप्लीकेशन है उसे रन करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रन ऐप, यू कैन चूज दैट। ओके, डिबग करवाने के लिए मतलब लाइन बाय लाइन डिबगिंग करना है, एट दैट टाइम यू कैन चूज दिस डिबग ऐप ऑप्शन। अगेन रन है, प्रोफाइल ऐप है, सो दिस आर द ऑप्शंस व्हिच विल बी यूजफुल टू यू। मैं अभी आपको सिर्फ कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं जो ज्यादातर आप यूज करोगे, ठीक है, एट द बिगिनिंग, मतलब एट द बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग थ्रू द ईच एंड एवरी ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। देन हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज एवीडी, दैट इज एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। फिर से बता रही हूँ, एवीडी मैनेजर दैट इज नथिंग बट एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। वो क्यों यूज करते हैं हम वर्चुअल डिवाइस मैनेजर? तो कैसे आपने एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोडिंग तो कर दिया, फिर आपको रन करवाने के लिए देखना तो पड़ेगा ना। तो आपको वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करवाना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये यू कैन क्रिएट योर ओन वर्चुअल डिवाइस फ्रॉम हियर। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्रोजेक्ट है मैं इसे रन करती हूँ अभी, तो आपको पता चले कैसा रहेगा वर्चुअल डिवाइस। ओके, दिस इज माय वर्चुअल डिवाइस, जिसे आप एंड्रॉइड एम्यूलेटर भी बोल सकते हो, ठीक है। This will take just 1 minute. Okay. Okay. Can you see? So this is our virtual device. ठीक है। तो अगर आपको अपने फोन में कैसे रन नहीं करवाना है, you want to use the virtual device, then you can create one from here, right? Tools में जाके AVD manager. So it will look something like this. अभी मैंने 3 वर्चुअल डिवाइस क्रिएट किए हुए हैं, one for API level 29, another one for API level 30 and the third one is for API level 24. ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ये मैंने इसलिए रखा है, उसका नाम इसलिए ऐसा दिया है कि मुझे पता चले कि वो कौन से API लेवल पे है, मतलब काम करेगा,
डिवाइस, ठीक है. अदरवाइज यू कैन सी इंफॉर्मेशन ओवर हियर, राइट. तो आपको मतलब आप जैसे इंस्टॉल करोगे ना, सो देयर वोंट बी एनी वर्चुअल डिवाइस अवेलेबल, सो यू कैन क्रिएट योर ओन, ठीक है. सो फॉर क्रिएटिंग अ वर्चुअल डिवाइस, ये जो हमारा पॉपअप विंडो है, ठीक है, उसके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में क्रिएट वर्चुअल डिवाइस करके एक बटन है. क्लिक ऑन दैट एंड यू विल सी दिस ऑप्शंस कि कैसे आपको टीवी के लिए वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना है, फोन के लिए क्रिएट करना है, वीआर ओएस के लिए क्रिएट करना है, या टैबलेट के लिए क्रिएट करना है, ठीक है. You can choose any of the options. So right now I want to create a virtual device for phone, so I am selecting it. Okay. फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपको कौन सा डिवाइस चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग विथ पिक्सल एक्सेल फॉर एग्जाम्पल, राइट. सो आई कैन चूज इट फ्रॉम हियर एंड उसकी जो हार्डवेयर प्रोफाइल है वो मैं यहाँ से देख सकती हूँ, और अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है. जैसे यहाँ पे डिवाइस नेम आपको क्या रखना है, देन डिवाइस टाइप है, उसका रिजोल्यूशन, रैम, उसके रिलेटेड जो सेंसर्स है उसके इंफॉर्मेशन, कैमरास, सपोर्टेड डिवाइस स्टेट्स क्या होना चाहिए, ऑल द थिंग्स, राइट. एंड इफ यू डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, जस्ट लीव इट लाइक दैट. अगर आपको कैसे कोई हार्डवेयर प्रोफाइल इंपोर्ट करवानी है, देन यू कैन डू इट फ्रॉम हियर. ओके. अब ये सारा चूज कर लेने के बाद गो टू नेक्स्ट. अब यहाँ से I hope you remember that we have discussed about different Android versions yesterday, right? तो यहाँ से आप कोई भी Android version चूज कर सकते हो. आपको जो भी यूज करना है वो वाला जो Android का वर्जन है उसके रिलेटेड यहाँ पे इंस्टॉल कर दो, डाउनलोड कर दो इंस्टॉल बेसिकली, ठीक है. मैंने अभी Q वाला जो है Android 10 उसका डाउनलोड करके रखा हुआ है. आपको और कोई करना हो तो कर सकते हो, वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके चॉइस एंड रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है. आफ्टर दैट गो टू नेक्स्ट एंड आप यहाँ पे आपका जो एवीडी है एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, उसका नाम यहाँ पे रख सकते हो, आपको जो भी नाम देना है वो, ठीक है. ये उसका रिजोल्यूशन वो सब है. और आपको स्टार्टअप में मतलब स्टार्ट करें तब कैसे चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है. सब कुछ हो जाने के बाद क्लिक ऑन फिनिश. सो योर virtual device will be created, okay, and you can use it after that. And after creating the virtual device, that will be visible over here, right? So that was all about virtual Android virtual device. Even आप यहाँ से भी वो ओपन कर सकते हो. देखो here, this is the symbol for Android virtual device, ठीक है. यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, टूल्स में भी ओपन करो, that's the same thing. यहाँ पे शॉर्टकट्स अवेलेबल है. फिर टूल्स में दूसरा ऑप्शन है एसडीके मैनेजर, राइट. तो एसडीके मैनेजर क्या होता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिफरेंट एंड्रॉइड के वर्जन्स, राइट. तो आपको कैसे आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, एसडीके मतलब उसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है. तो आपको कौन से वर्जन में यूज करना है वो, उसके लिए तो I have मतलब installed Android Pie, right, 9 मतलब 9.2, and दूसरा मैंने एक रखा है 4.0.3, that is ice cream sandwich. So basically what I have done that one higher version and one lower version, ठीक है. आप भी वैसा कर सकते हो. अगर कैसे, अगर आपके लो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है सिस्टम में तो दो रखो कि कैसे आप चेक कर सको एप्लीकेशन को कि वो लोअर वर्जन में कैसे वर्क करता है, हायर वर्जन में कैसे वर्क करता है, बिकॉज few of the features are not supported in lower version, right. तो वो चेक करवाने के लिए आप दोनों तरीके के रख सकते हो. देन उसके बाजू में एक ऑप्शन है एसडीके टूल्स, दिस इज एसडीके प्लेटफॉर्म्स, राइट. बाजू में ऑप्शन है एसडीके टूल्स. तो आपका जो प्लेटफॉर्म है पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल 9.0 पाई, राइट. तो पाई में मुझे क्या क्या चीजें चाहिए तो वो मैं यहाँ पे चूज करके रखूंगी एंड आफ्टर दैट आई विल इंस्टॉल इट. ओके, फॉर एग्जांपल चलो मुझे अभी किटकैट इंस्टॉल करना है, मैंने किटकैट चूज किया, उसके रिलेटेड जो भी मुझे चाहिए सारे मैंने यहाँ से चूज करके रखे और उसके बाद आई क्लिक ऑन अप्लाई, देन दैट विल बी इंस्टॉल्ड, राइट.
अब हाँ, हम ये डिस्कस कर रहे थे एसडीके टूल्स। तो एसडीके टूल्स क्या होता है कि आप कोई भी कैसे एंड्रॉइड का वर्जन इंस्टॉल करें, उसके साथ कुछ प्लगइन्स आपको रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है, जैसे कि गूगल के रिलेटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। गूगल वेब ड्राइवर है मुझे चाहिए, या गूगल यूएसबी ड्राइवर चाहिए। देन सपोज के मुझे एंड्रॉइड ऑटो एपीआई सिम्युलेटर चाहिए। तो मुझे जो भी चीजें रिक्वायर्ड होगी वो सारी मैं चूज करके इंस्टॉल कर दूंगी, ठीक है। और अगर कोई अपडेट आई है तो यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, ओके। एंड ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, दिस वन इज द लोकेशन ऑफ एसडीके मैनेजर। तो आपका जो एसडीके है वो यहाँ पे स्टोर्ड हुआ है, ठीक है। तो अगर कैसे एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड ने ऑलरेडी एसडीके इंस्टॉल करके रखा है। चलो मेरे पास अभी 9 है और 4.0.3 है, ठीक है। मुझे चाहिए एसडीके 5, 6 एंड 7। मेरी फ्रेंड ने ऑलरेडी वो इंस्टॉल करके रखा है, तो आई कैन टेक इट फ्रॉम हर एंड आई कैन पुट इट एट दिस लोकेशन, so that it will be like detected and I can use that। और या वैसा कर सकते हैं आप, पूरा का पूरा उनका एसडीके का जो फोल्डर है वो लो और यहाँ पे उसका पाथ दे दो, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। फिर अपीयरेंस के रिलेटेड कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, इफ यू वांट टू चेंज इट देन, लाइक आपको फॉन्ट की साइज चेंज करनी हो या वैसे कुछ, ठीक है। अभी सपोज मैंने 16 रखा, देन पासवर्ड, मेनूज एंड टूल बार्स के रिलेटेड कुछ चेंज करना है, सो ऑल ऑफ दिस आर अवेलेबल ओवर हियर। काम का बाद में कर देंगे, अभी तो रहने दो, इट विल टेक टाइम, ओके। सो दिस वाज अबाउट एसडीके मैनेजर, राइट। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि कॉटलिन के रिलेटेड, देन फायरबेस का रिलेटेड लेआउट इंस्पेक्टर है, ठीक है। देन देयर इज वीसीएस, जहाँ पे आपको कोई पैच अप्लाई करना हो, लोकल हिस्ट्री चेक करनी हो, उन सब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड इन विंडोज नोटिफिकेशन, बैकग्राउंड में कोई टास्क चल रहा हो उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड देन देयर इज अ हेल्प, आपको कुछ अपडेट चेक करवानी हो, राइट, या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में कोई हेल्प चाहिए, सर ऑप्शंस आपको सर्च करवाने हो, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। सो दिस वर द ऑप्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज द सिंपल सिंबल ऑफ मेक प्रोजेक्ट, जो हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट। मैंने आपको यहाँ पे बताया था बिल्ड में, दिस इज द सेम थिंग, राइट, कि आपको आपने जो चेंजेस किए या एप्लीकेशन क्रिएट किए उसे बिल्ड करने के लिए। देन ऐप या एडिट कॉन्फ़िगरेशन, आपको जो भी रखना है रन करवाने के लिए, आपके जो भी एवीडी है, ठीक है, वर्चुअल डिवाइसेस है, वो यहाँ पे दिखाई देंगे। राइट नाउ आई एम यूजिंग न्यू डिवाइस विद API 29, तो ठीक है, अभी ये ऑन है तो आपको वो दिखाई देगा कि रनिंग डिवाइस। बाकी के ये दो अवेलेबल डिवाइसेस है। अब मान लो किसी को वर्चुअल डिवाइस यूज नहीं करना है, ठीक है, देन दैट्स ऑल्सो ओके। आप क्या कर सकते हो इन दैट केस, आपको अगर आपके फोन में एप्लीकेशन रन करवानी हो, टेस्टिंग आपके फोन में करवाना हो, तो आपको 2 से 3 चीजें करनी होगी। पहले तो आपका जो फोन है, ठीक है, उसके ड्राइवर्स आपको आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करने होंगे, ठीक है। और आपका जो फोन है उसके सेटिंग्स में जाओ, उसके बाद डेवलपर ऑप्शंस आएगा, जस्ट अ मिनट मैं प्रॉपर पाथ ही बता दूं। सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाके आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, और अगर डेवलपर ऑप्शन ना मिले तो क्या करना है, अबाउट फोन पे जाओ और उसके बिल्ड नंबर पे क्लिक करो, एज लाइक 6 to 7 टाइम्स, ठीक है।
अबाउट फोन में जाओ और उसके बिल्ड नंबर पे 6 to 7 टाइम्स क्लिक करोगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा एंड आफ्टर दैट गो टू द डेवलपर ऑप्शन। फिर डेवलपर ऑप्शंस में जाके आपको डेवलपर ऑप्शंस ऑन करना है एंड यूएसबी वाला एक ऑप्शन है यूएसबी डिबगिंग, वो भी ऑन करना होगा। ट्राई करना, आई थिंक ये स्टेप्स शायद से ऑलरेडी अवेलेबल होंगे नेट पे। ट्राई करना, अगर ना मिले ना या पता ना चले तो मुझे नेक्स्ट टाइम बताना, ठीक है? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के दे दूंगी तो कि क्या करना है। ओके, तो फिर आप वैसे और कर सकते हो। फिर कैसे, आपका जो चार्जिंग केबल है यूएसबी केबल, उसे कनेक्ट करो लैपटॉप और फोन के साथ एंड योर डिवाइस विल बी अवेलेबल ओवर हियर। ठीक है, ये जो लिस्ट आ रहा है उसमें आपका फोन का नाम भी आ जाएगा। तो कैसे, अभी हमने ये चूज करके रखा है, आप फिर अपना फोन चूज करो और रन करो तो आपके फोन में एप्लीकेशन टेस्ट हो। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑप्शन है दैट इज फॉर रन। तो अभी हमारा रनिंग स्टेट में है तो इस तरीके से आइकन दिख रहे हैं। मैं इसे क्लोज कर देती हूँ अभी मेरे वर्चुअल डिवाइस को। यस, तो अब आप देख सकते हो आइकन चेंज हो गया, राइट? आई थिंक पाइथन में भी सेम है शायद। देन हियर इज द ऑप्शन फॉर debug प्रोफाइल ऐप, अगेन debug लाइक दैट। ओके, और ये तो हमने देख लिया AVD and SDK, right? This one is for Gradle sync, right? You can see over here Gradle sync, Gradle project sync in progress। फिर आपको कुछ भी रन करवाना हो आपकी एप्लीकेशन में, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन या ऑल थिंग्स, देन यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। फिर उसके बाद है आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। आपको आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखना हो तो यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि आपका ग्रेडल का वर्जन क्या है, राइट? देन ग्रेडल प्लगइन का वर्जन क्या है, एसडीके का लोकेशन क्या है, राइट? जेडीके का लोकेशन क्या है, यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर। विच आर द वेरिएबल्स, मॉड्यूल्स, डिपेंडेंसीज क्या है, बिल्ड वेरिएंट कौन से है, तो यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर एंड हियर आर फ्यू सजेशंस आल्सो कि आप कोई अपडेट करना चाहिए, ऑल द थिंग्स। ठीक है, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर। Okay, project structure. So these were the options available. अब एक काम करते हैं, हमने ये थोड़े बहुत तो ऑप्शंस देख लिए, ठीक है? नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और उसके साथ दूसरे सारे जो फाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे वो सब समझते हैं। सो गो टू फाइल, न्यू एंड गो टू न्यू प्रोजेक्ट। अब देखो, आप जैसे ही कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने मतलब क्रिएट करोगे, एट दैट टाइम आपको यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी दिखाई देगी। ठीक है, एक्टिविटी एज ए, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अ पेज इन एंड्रॉइड। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है। जैसे कि आपको वैसा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसके अंदर कोई भी एक्टिविटी ना हो, तो यू कैन चूज फॉर नो एक्टिविटी। If you want to add one basic activity, then you can choose this। आपको empty activity चाहिए तो ये choose करो। कैसे, आपको bottom में navigation activity चाहिए, right? So you can choose this। आपको fragment plus view model चाहिए तो you can choose this। अगर आपको कैसा map import करवाना है, you can choose this one। navigation drawer add करवाना है तो ये choose करो, right? So there are different kinds of activities available। Okay, you can choose any।
अब अगर आपको फोन एंड टैबलेट नहीं वियर ओएस के रिलेटेड मतलब कुछ प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए रिलेटेड एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है। जैसे कोई भी एक्टिविटी ऐड नहीं करनी, ब्लैंक वेयर एक्टिविटी ऐड करनी है, गूगल मैप्स वेयर एक्टिविटी ऐड करनी है, वॉच फेस वाली एक्टिविटी ऐड करनी है, इवन टीवी के लिए भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड ऑटो के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉइड थिंग्स के लिए अवेलेबल है। तो आप कौन से मतलब एंड्रॉइड डिवाइस के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग एम्प्टी एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी तो क्रिएट हो पर उसके अंदर और कुछ ना हो, मैं खुद से ऐड करूंगी। इट्स लाइक दैट। ठीक है, so choose any of the activity which you want to add in your new project and click on next। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके जो प्रोजेक्ट है उसका नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ फर्स्ट एप्लीकेशन, नाम उसका। ठीक है, ये उसका पैकेज नेम है com.example, और उसके बाद आपने जो भी नाम दिया होगा दैट विल बी ओवर हियर com.example.first application। इस पैकेज के अंदर हमारी जावा फाइल स्टोर होती है। ठीक है, सो दिस इज द लोकेशन वेयर माय प्रोजेक्ट विल बी स्टोर्ड। आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब जो एंड्रॉयड है उसका डेवलपमेंट दो लैंग्वेज में होता है, मतलब बैकएंड का कोडिंग है वो। ठीक है, एक है जावा, दूसरा है कोटलिन। बोथ आर अवेलेबल ओवर हियर, बट वी प्रिफर जावा ओवर हियर, राइट? सो आई विल चूज जावा। फिर आप अपना जो मिनिमम एपीआई लेवल है फॉर योर एप्लीकेशन यू कैन चूज दैट। राइट नाउ आई एम हैविंग द लोएस्ट possible API level, so I have choose API level 15, which is ice cream sandwich, right? And after that click on finish. So your new project will be created, and here you can see in sync all the configuration related things are going on, right? So we will wait till this process completes. Just a minute, students. If default emulator is not working, try using Genymotion. Yes, you can use Genymotion, but if you are having Android phone, then that is more preferable. उसका रीजन ये है कि कैसे वर्चुअल डिवाइस है ना, उसके अंदर आपके जो प्रोजेक्ट लोड होने में रन होने में ज्यादा देर लगती है। पर अगर आप कैसे फोन यूज करोगे अपना, ठीक है, फॉर टेस्टिंग, तो उसके अंदर बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। सो दैट्स वाई फोन इज मोर प्रेफरेबल। ये कैसे अभी आपको दिखाना होता है ना, तो मतलब स्क्रीन पे विजिबल रहे आउटपुट, उसके लिए मैं वर्चुअल डिवाइस यूज करूँ, अदरवाइज आई प्रेफर फोन। Here it is. ये आई गेस हमारा जस्ट अ मिनट, मैंने कहा ये पुरानी एप्लीकेशन है। दिस वन इज ओल्डर वन, मैंने नई वाली क्लोज कर दी। जस्ट अ मिनट।
यस, एक मिनट, नाम क्या है उसका? माई फर्स्ट एप्लीकेशन, मैंने फिर से वही ओपन किया क्या? हमने नाम क्या दिया था? सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन दिया था ना? तो ऐसा होता है, नाम भूल जाते हैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके। मैम रिसेंट प्रोजेक्ट में जाके ओपन कर दो ना। हो गया, हो गया। दिस इज द न्यूअर वन। ओके, राइट, दिस इज द न्यूअर वन। सो यस, हमने अभी तक जो ऊपर ऑप्शंस अवेलेबल है वो देखे, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे? द फाइल स्ट्रक्चर which is available in Android. Then we'll learn about the activity. Okay. एंड नीचे जो ऑप्शंस अवेलेबल है लास्ट में वो देख लेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्टिविटी से शुरू करते हैं। तो इन एंड्रॉइड इफ यू वांट टू क्रिएट एनी एक्टिविटी, ओके, कोई भी एक सिंगल एक्टिविटी होती है जिसे हम अब मतलब अगर समझना है तो पेज भी समझ सकते हो एक सिंगल, ठीक है। तो एक्टिविटी दो फाइल से बनती है। एक फाइल है आपकी जावा फाइल, राइट, और दूसरी फाइल है XML फाइल। फ्रंट एंड का जो काम है, ठीक है, जैसे सारे कंट्रोल्स प्लेस करना, फॉर एग्जांपल योर एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू, बटन, राइट, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सब प्लेस करना। देन कलर चेंज करो, लुक एंड फील चेंज करो, बैकग्राउंड चेंज करो, वो सारी चीजें कहाँ पे करोगे आप? XML में। और अगर आपको बैकएंड में कुछ काम करना है, बैकएंड में कुछ काम करना है कि सपोज मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो कुछ टास्क परफॉर्म हो, ठीक है। अगर कैसे टेक्स्ट कुछ ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एडिट टेक्स्ट में कुछ ऐड किया, ठीक है, आपने सपोज खुद का नाम ऐड किया एंड आप बटन पे क्लिक कर रहे हो तो कैसे वेलकम एंड जो नेम ऐड किया है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो बेसिकली जो सारे ऑपरेशंस है बैकएंड के, वो करने के लिए आप जावा फाइल यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ऑलवेज देयर विल बी टू फाइल्स अटैच्ड विथ वन एक्टिविटी, one for front end which is XML file and the other one is Java, ओके। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल सिर्फ XML फाइल से ही ऐड कर सकते हो, आप जावा फाइल से भी कंट्रोल ऐड कर सकते हो। जैसे उसका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, जावा में आप कैसे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो वैसे वैसे भी कर सकते हो, एंड उसके कोऑर्डिनेट्स ऐड करो, वो सब भी हो सकता है। बट द थिंग इज XML इज मोर हैंडी एंड इजी टू यूज, ओके। तो जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आप जो एम्प्टी एक्टिविटी लो तो एक एक्टिविटी क्रिएट होती है दैट इज मेन एक्टिविटी, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी की एक जावा फाइल रहती है दैट इज नोन एज मेन एक्टिविटी डॉट जावा, एंड एक XML फाइल होती है दैट इज एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML, ठीक है। लेट्स सी दैट हियर यू कैन सी, देखो ये आपकी है मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल और बाजू में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, चलो उसके रिलेटेड थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले XML फाइल देखते हैं। सो XML फाइल में भी फर्दर दो टाइप्स रहती है, एक डिजाइन टाइप एंड दूसरा टेक्स्ट
ठीक है। तो टेक्स्ट में क्या होगा, आपका जो भी XML फाइल है, ठीक है, वो टैग के साथ पूरा दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे एक ऑलरेडी टेक्स्ट व्यू है हमारा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। टेक्स्ट व्यू मतलब सिंपल लेबल। A label is known as text view in Android, okay? मतलब सिर्फ कुछ डिस्प्ले करना हो, आप उसे एडिट नहीं कर सकते, लाइक दैट। तो जैसे ही आप उस टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करते हो, दैट scope of the text view in text file will be highlighted starting and ending, right? So you can see this text view. अब डिजाइन की बात करें तो कैसे आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे मुझे सपोज के कोई बटन ऐड करना है, तो हियर इज अ बटन अवेलेबल, आई कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके। मुझे कोई इमेज रखनी है, आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ से आप रिसोर्सेस ऐड करवा के इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट ओवर हियर, ठीक है। तो दिस आर द कॉमन ऑप्शंस। फिर आपको कैसे टेक्स्ट रिलेटेड कुछ ऐड करवाना है, तो उसके लिए भी वेरियस लाइक इनपुट्स अवेलेबल है, जैसे कि टेक्स्ट व्यू, प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड ऐड करवाना है, पासवर्ड न्यूमेरिक में ही चाहिए, ईमेल है, फोन नंबर है, ठीक है, टाइम, डेट, तो अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। बटन चाहिए अलग अलग, तो सिंपल बटन, इमेज बटन, रेडियो बटन है, ठीक है, रेडियो ग्रुप, चेक बॉक्स है। We'll learn about all these controls, right? Then there are different types of widgets. आपको ऐड करवाना है, वेब व्यू, सिक बार ऐड करना है, प्रोग्रेस बार ऐड करना है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे अवेलेबल है। Then there are layouts. आपको लेआउट कौन सा रखना है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर में आपको लेआउट एंड कंट्रोल व्यूज जो है उसका इंफॉर्मेशन दूँ, ठीक है। अभी हम बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देन आपको कंटेनर्स ऐड करना है, देन यू कैन एडिट फ्रॉम हियर। गूगल की कोई सर्विस ऐड करवानी है, लाइक मैप व्यूअर एंड ऑल द थिंग्स, यू कैन एडिट फ्रॉम हियर, राइट। देन लिस्ट व्यू ऐड करना है, ग्रिड व्यू ऐड करना है, तो उसके भी ऑप्शंस अवेलेबल है। और अगर कैसे आपको याद नहीं है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि मुझे याद नहीं रहता, तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपली यहाँ पे जाके सर्च कर सकती हूँ, तो दैट विल बी अवेलेबल ओवर हियर, जो भी कंट्रोल्स है, ठीक है। आप उसे मिनिमाइज करके हाइड कर सकते हो, एंड इफ यू वांट टू रीओपन इट, जस्ट क्लिक ऑन दिस पैलेट, ठीक है। अब एक और चीज, आपके हर एक कंपोनेंट की, और से हर एक कंट्रोल, ठीक है, जिसे आप व्यू भी बोल सकते हो, तो हर एक व्यू की डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होती है, और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड, राइट। फिर आपको उसकी साइज डिफाइन करनी हो या वैसे कुछ, तो उसके लिए आप यहाँ से टेक्स्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट में नया ऐड कर दो, जैसे कि मुझे साइज चेंज करनी है, तो एंड्रॉइड टेक्स्ट साइज यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, और आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करना, तो दूसरा ऑप्शन ये अवेलेबल है, डिजाइन में जाओ, जो भी व्यू है जिसका आपको चेंज करना है साइज, उसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे उसका रिलेटेड पैरामीटर्स अवेलेबल है, यहाँ से चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड, उसकी साइज भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। सब कुछ चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, कलर, आई कैन डू दैट, राइट। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड चेंज कर देना है, मुझे रखना है वेलकम टू मैड लैब, so I can do that, right? Welcome to Mad Lab. I hope it's visible to you. तो आप यहाँ से चेंज करो, वहां से चेंज करो, दोनों से। हाँ, वहाँ पे लाइक दो थे ना, एक बार फिर से वेलकम टू मैड लैब में जाओ। हाँ, तो लाइक कॉमन हाँ, है, टेक्स्ट, डिक्लेयर्ड, हाँ, कॉमन है। आप यहाँ से चेंज करो या नीचे से चेंज करो, कुछ डिफरेंस नहीं है। सपोज मैंने वेलकम टू लैब कर दिया, ठीक है, तो भी दोनों में चेंज हो जाएगा, देखो, ठीक है।
और यही चीज आप टेक्स्ट से भी ऐड चेंज कर सकते हो, चैट टेक्स्ट में भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेस लाइक दिस, आपको जहां से कन्वीनियंट लग रहा है यूज करो, ठीक है। फिर एक और चीज, हमने बटन ऐड किया था, तो देखो अभी यहाँ पे बटन आ गया, तो उसके रिलेटेड आप XML में भी देख सकते हो कोड, ठीक है। अगर मैं एक कोड हटा दूं, बटन भी गायब हो जाएगा। सो लाइक देखो कुछ प्रोग्रामर्स को कैसा कन्वीनियंट लगता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करे और यहाँ से चेंज करे, कुछ लोगों को कैसी आदत है कि टेक्स्ट में पूरा कोडिंग करे। तो आपको जिस तरीके से कन्वीनियंट लगता है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे कैसा ज्यादा बेटर लगता है कि मैं कुछ चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ, कुछ चीजें यहाँ से कोड से चेंज कर देती हूँ, तो लाइक दैट यू कैन डू वॉट एवर यू प्रिफर, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट एक्टिविटी, कि उसका XML कैसे आप XML पे कैसे काम कर सकते हो। अब हर एक कैसे ये जो हमारा व्यू है, ठीक है, हर एक व्यू की कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, तो वो हम जब लेक्चर में कंट्रोल सीखेंगे, मतलब ये सारे व्यूज, तब डिटेल में सीखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करने से क्या होता है, ऑल द थिंग्स, ठीक है। पर अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको यूज कर सकते हो, ओके। अब हाँ, एक और चीज, जब भी आपने कोई कैसे फाइल ओपन की हुई है, जैसे मैंने अभी ओपन की जावा फाइल, उसकी राइट जावा फाइल है, तो उसका जो क्या बोलते हैं पाथ है, ये जावा फाइल जहां पे उसका पाथ है, दैट विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर, देखो ऊपर यहाँ पे, दिस इज द पाथ ऑफ दिस जावा फाइल मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऐप, उसके अंदर सोर्स मेन जावा कॉम एग्जाम्पल फर्स्ट एप्लीकेशन, और उसके अंदर है मेरे जावा फाइल मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ठीक है। वैसे ही अगर आप ये क्लिक करते हो एक्टिविटी XML, जस्ट अ मिनट, एक मिनट हाँ स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाई दिस,
Students will resume in 2 to 3 minutes. अच्छा, मीनवाइल मुझे ये बताओ, आप लोगों में से कितनों ने एंड्रॉइड पे ऑलरेडी काम किया है पहले कभी, लाइक कोई छोटी मोटी भी एप्लीकेशन बनाई हो तो? ओके, दिव्यम ने काम किया है, फिर आर्चा, इरफान, राहुल, दृष्टि, पूजन, चिंतन, एशा, मौसमी, पार्थ, नीत। ओके, करण शाह। ओके, ठीक है। तो जिन्होंने कैसे काम किया है, अगर उन लोगों को कैसे ये जो फर्स्ट एंड सेकंड प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट करना है तो कर सकते हो, ठीक है, दैट इज नॉट एन इश्यू। पर हाँ, यू हैव टू स्टे कनेक्टेड। और हाँ, और एक चीज और डिस्कस करनी थी, स्टार्टिंग में वो रह गई थी, वो भी बता देती हूँ अभी कि जैसे मैंने कल बताया था लेक्चर में, आपको मिनी प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक ठीक है। मिनी प्रोजेक्ट एज एन एक प्रोजेक्ट ही बोल दो एंड्रॉइड में तो वी हैव टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। आप अपने हिसाब से ग्रुप क्रिएट कर सकते हो एंड चूज द डेफिनेशन। बट हाँ, एक चीज है कि किसी के साथ मैच नहीं होनी चाहिए आपकी डेफिनेशन। मतलब कोई एक स्टूडेंट किसी एक डेफिनेशन पे वर्क करता है तो दूसरे स्टूडेंट की सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब दूसरे ग्रुप की, ठीक है। तो उसके लिए आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर कर दी जाएगी, उसके अंदर आपको जो डेफिनेशन है वो ऐड करनी है, ठीक है।
Okay, so let's start. Yes, sorry for the inconvenience. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यस, तो मैं आपको ये बता रही थी कि आप जो भी एप्लीकेशन, मतलब सॉरी नॉट एप्लीकेशन, जो भी फाइल ओपन करोगे, ठीक है, जिस फाइल पे आप करंटली होगे, वो फाइल जो है उसका पाथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा. जैसे अभी हमने एक्सएमएल फाइल ओपन की हुई है, ठीक है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो देयर इज द पाथ ऑफ अवर एक्सएमएल फाइल. इवन आप यहाँ से राइट क्लिक करके पाथ कॉपी कर सकते हो. हियर यू कैन सी कॉपी पाथ, राइट. अगर आपको कैसे वो एक्सप्लोरर में देखना है, तो यू कैन चूज दिस ऑप्शन ओपन इन टर्मिनल. सॉरी, नॉट ओपन इन टर्मिनल, ओपन इन एक्सप्लोरर, माय मिस्टेक. ये रहा शो इन एक्सप्लोरर, राइट. लास्ट टू 1 2 3 4 5 फिफ्थ ऑप्शन. तो पर्टिकुलर वो जिस जगह पे आपके एक्सप्लोरर में स्टोर्ड है, उस फाइल पे लेके जाएगा. आई होप इट्स विजिबल, राइट. These are the few tricks which will be helpful to you. Okay. अब इसकी बात हो ही रही है तो एक दो और चीजें बता देती हूँ. हाँ, सपोज आपने मल्टीपल फाइल्स ऐसे ओपन करके रखी है और सारी फाइल्स क्लोज कर देनी है, ठीक है, मैन्युअली नहीं करना. देन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन एनी ऑफ द फाइल एंड चूज द ऑप्शंस विच आर, मतलब फॉर क्लोज विच आर अवेलेबल ओवर हियर. अगर आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो करंट फाइल क्लोज होगी. जैसे वो एक्सएमएल फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है, मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल. अब सपोज कि कैसे मुझे कलर्स, ये जो फाइल है कलर्स डॉट एक्सएमएल, उसके अलावा की सारी फाइल्स क्लोज करनी है. देन क्लिक ऑन दैट, मतलब राइट क्लिक ऑन दैट फाइल एंड चूज द ऑप्शन चूज अदर्स, और सॉरी क्लोज अदर्स, ठीक है. तो इसके अलावा की सारी फाइल क्लोज हो जाएगी. फिर सपोज के सारी की सारी फाइल्स क्लोज कर देनी है, डजंट मैटर कि कौन सी फाइल है, ठीक है, तो क्लोज ऑल. तो दूसरे भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि क्लोज ऑल बट पिन्ड. तो जो फाइल पिन्ड होगी वो क्लोज नहीं होगी, बाकी की सारी क्लोज हो जाएगी. आपको पाथ कॉपी करना है तो भी यहाँ से कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्प्लिट करना है. सो दिस आर द ऑप्शंस अवेलेबल. और सपोज कि आपको ये फाइल को पिन करना है तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, पिन टैब, राइट. सो दिस आर द ऑप्शंस रिलेटेड टू फाइल. आप उसे इजीली मैनेज कर पाओ उसके लिए. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फाइल स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रॉइड. ओके, सो in Android, okay, here is the option. This is the project, our main. This is the packages, उसके project files, production test, then project source files, सारे options available. Right now we are in Android. Android के अंदर मेन दो फोल्डर है, एक ग्रिडल स्क्रिप्ट्स एंड दूसरा ऐप. ऐप के अंदर क्या है, आपकी जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स है दैट विल बी इनसाइड योर ऐप, मतलब जो आप चेंज करोगे, ठीक है. तो जैसे कि फर्स्ट है मैनिफेस्ट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल. आप जितनी भी एक्टिविटी ऐड करोगे ना, उन सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड होगी. फिर आपका जो आइकन है, एप्लीकेशन का आइकन, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो वो सारी चीजें यहाँ पे स्टोर्ड होगी. आपके ऐप का आइकन क्या होगा, फिर उसका लेबल जो है, ठीक है. सो ऑल दैट थिंग्स आर ओवर हियर. फिर आपको कैसे कुछ ऐड करवानी है डिपेंडेंसी, देन यू कैन ऐड इट इन मैनिफेस्ट फाइल. सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई एंड्रॉइड की एप्लीकेशन रन करते हो ना, तो सबसे पहले मैनिफेस्ट से शुरू होता है, ठीक है. सबसे पहले मैनिफेस्ट वाली फाइल रन होगी, उसके बाद वो दूसरी जो एक्टिविटी पे है उसके ऊपर रिडायरेक्ट करेगा. इन अवर केस देयर इज ओनली वन एक्टिविटी विच इज मेन एक्टिविटी, राइट. कैसे, अगर मैंने पूरा, ये तो कैसे अभी हमने देखा तो आपको पता चल रहा है, अदरवाइज मैनिफेस्ट से ही आपको पता चल सकता है. देखो यहाँ पे एक्टिविटी टैग है, दैट इज दिस इज फॉर वन एक्टिविटी, दिस टैग, ठीक है, एंड उसका नाम है मेन एक्टिविटी. ओके, तो यहाँ से पता चल सकता है.
फिर दिस इंटेंट फिल्टर जो है वो क्या होता है एक्चुअली कि आपको कौन सी एप्लीकेशन से रन करवाना है, सॉरी कौन सी एक्टिविटी से रन करवाना है, वो आपको यहाँ से पता चलता है इंटेंट फिल्टर से। सपोज कि मेरे पास एक से ज्यादा एक्टिविटीज है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जस्ट अ मिनट। अरे ओके, सपोज मेरे पास एक से ज्यादा एक्टिविटी है, मैं अभी एक्टिविटीज को एज अ बॉक्सेस दिखा रही हूँ, ठीक है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज क्रिएट की है, फॉर एग्जांपल 5 एक्टिविटीज क्रिएट करी, 4 5। आई नो सबकी साइज अलग है, पर एंड्रॉइड में मतलब आप जो क्रिएट करोगे उसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज कैसे इसके नाम भी दे देते हैं। इस एक्टिविटी का नाम है ए, दूसरी का नाम है बी, यहाँ पे इसका नाम है सी, सपोज इस एक्टिविटी का नाम है डी, और यहाँ पे ऊपर जो एक्टिविटी है उसका नाम है ई, और मुझे इसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रन करना है, ठीक है। बाकी के सब तो कैसे हो गई है, फिर मुझे सबसे पहले कौन सी रन करनी है एक्टिविटी, ठीक है। सपोज मुझे सबसे पहले ई एक्टिविटी रन करवानी हो तो क्या करना होगा, तो ये जो हमने अभी इंटेंट वाला देखा ना टैग, दैट विल बी इनसाइड दिस एक्टिविटी ई। यहाँ पे जब एक्टिविटी ई हम लिस्ट आउट करेंगे उसके अंदर वो टैग रख देंगे, तो सबसे पहले मेरी जो एक्टिविटी लॉन्च होगी, मतलब जब आप रन करोगे तब, सो एट दैट टाइम एक्टिविटी ई विल बी लॉन्च्ड, ठीक है। तो अगर आपने 5 एक्टिविटी ली हुई है इस तरीके से ए बी सी डी ई, तो उन सब के लिए अलग अलग यहाँ पे मैनिफेस्ट के अंदर टैग रहेंगे एक्टिविटी के, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ठीक है। और आपको कौन सी एक्टिविटी से मतलब सपोज मुझे ए से बी ओपन करवानी हो, बी से सी ओपन करवानी हो, सी से डी ओपन करना है और डी से ई ओपन करना है, तो उसके लिए फर्स्ट कौन सी एप्लीकेशन ओपन होगी वो आपको मैनिफेस्ट में यहाँ पे मेंशन मतलब करना होगा, और उसके बाद का जो आपका ट्रैवर्स है वो तो फिर आप इंटरनली आपकी जो जावा फाइल है, ठीक है, उसके अंदर इंटेंट की हेल्प से कर सकते हो साथ में। बट what I'm trying to explain you over here is the first application which you want to run, okay। आपको जो भी रन करवानी हो फर्स्ट एप्लीकेशन वो यहाँ से करवा सकते हो। सो उसके अंदर दिस ये जो इंटेंट फिल्टर वाला है टैग वो रख दो, ठीक है, बिकॉज दैट विल बी योर लॉन्चर एप्लीकेशन, ठीक है। इन फ्यूचर हम जब कोई नई एक्टिविटी क्रिएट करेंगे उसके साथ में आपको ये दिखाऊंगी कि फिर से यहाँ पे क्या होता है। नई एक्टिविटी के लिए यहाँ पे दूसरा टैग ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज अवर मैनिफेस्ट फाइल। I hope all of you understand it. Then the second folder is Java. So in this folder, our Java file will be there. Okay. तो हमारी एक मतलब एक्टिविटी की 2 फाइल रहती है, मतलब कोई भी एक एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया कि XML एंड जावा, ठीक है। तो उसमें से जो जावा फाइल है वो सारी यहाँ पे रहेगी। तो जैसे इसके अंदर कैसे 3 पैकेजेस है अभी, com.example.first application, फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारा एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। सो दैट इज ओवर हियर। तो उसके अंदर है हमारी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल। अगर मान लो मैंने दूसरी एक एक्टिविटी क्रिएट की होती, सपोज मैंने दूसरी एक एक्टिविटी क्रिएट की है एबीसी करके, तो उसकी 2 फाइल रही होगी, abc.java, राइट, abc.xml। तो इसमें से जो जावा फाइल है वो कहाँ पे स्टोर होगी, मेन एक्टिविटी के साथ यहाँ पे इस फोल्डर में, ठीक है। सो बेसिकली आप जितनी भी एक्टिविटीज क्रिएट करती हो उन सबकी जावा फाइल यहाँ पे होगी। Then next folder com.application, sorry, com.example.first application. So this is the folder for test what can I say file। तो इसके अंदर आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है अभी तो,
ठीक है, you don't need to change anything in this. This is one is auto generated file. Same for this one, com.example डॉट फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर में एग्जाम्पल यूनिट टेस्ट करके जो फाइल है, दिस वन इज ऑल्सो ऑटो जनरेटेड, यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग इन इट. आपको बस ये फर्स्ट फोल्डर है उसके अंदर मेन एक्टिविटी जो है अभी तो यहाँ पे चेंज करें. अगर आप नई एक्टिविटी क्रिएट करें उसकी जो जावा फाइल है वहां पे आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, देन दिस वन इज ऑटो जनरेटेड जावा फाइल एंड दिस वन इज योर बिल्ड कॉन्फिग फाइल. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर इज RES, दैट इज रिसोर्स फोल्डर. ठीक है, तो इसके अंदर हमारा XML फाइल है वो, फिर सारी स्ट्रिंग्स के रिलेटेड फाइल, कलर्स के रिलेटेड फाइल, वो सारी चीजें यहाँ पे स्टोर्ड होंगी. इवन आवर इमेजेस विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस रिसोर्स फोल्डर. So if you will click open this resolve folder, there are sub folders like drawable, layout, map, values. Okay, so if you will open drawable folder, तो उसके अंदर launcher की जो XML फाइल है that is inside this and foreground की जो है. ठीक है, अब लेआउट के अंदर क्या होगा, सेकंड फोल्डर इज लेआउट फोल्डर. तो हमारी जो एक्टिविटी की XML फाइल्स है that will be stored inside this layout. ठीक है, जावा फाइल यहाँ पे एंड XML फाइल है वो लेआउट के अंदर. अगर आप, फिर से बता रही हूँ, दूसरी कोई एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था abc.java एंड abc.xml, तो abc.java यहाँ पे स्टोर होगी इस वाले फोल्डर में एंड abc.xml यहाँ पे स्टोर होगी. ठीक है, फिर नेक्स्ट है फोल्डर मिपमैप. तो मिपमैप के अंदर आप जो भी इमेज एसेट यूज कर रहे हो, मतलब करने वाले हो या यूज कर रहे हो आपके एप्लीकेशन में, दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस मिपमैप फोल्डर. तो उसके अंदर IC लॉन्चर एंड IC लॉन्चर राउंड दो तरीके के फोल्डर्स हैं. ठीक है, तो ये राउंड में अवेलेबल है एंड दिस वन इज इन स्क्वायर. तो जो भी टाइप के आपको चाहिए ऑप्शंस, यू कैन गो फॉर इट. और यहाँ पे सेम मतलब एप्लीकेशन के डिफरेंट वर्जन अवेलेबल है. HDPI है, MDPI है, XHDPI, तो वो साइज डिफरेंस रहता है और रिजोल्यूशन डिफरेंट रहता है. ठीक है, सो दैट्स इट. और ये उसकी ओरिजिनल XML फाइल. सो दिस इज IC launcher and IC launcher round inside the map. Okay, now the next one is values folder. Values folder में क्या है, inside this values folder there are total 3 files. 3 files as you can see, colors.xml, strings.xml, styles.xml. ठीक है, तो कैसे आपको कोई कलर की वैल्यू स्टोर करवानी हो, यूनिफॉर्म कलर आपको आपकी थ्रू आउट एप्लीकेशन में यूज करना हो, एट दैट टाइम यू कैन स्टोर दैट कलर्स हेक्स वैल्यू इनसाइड दिस colors.xml. सपोज मुझे ब्लैक कलर स्टोर करवाना है, चलो मैं अपनी एप्लीकेशन में बहुत सारी जगह पे ब्लैक कलर यूज करने वाली हूँ, तो मुझे यहाँ पे स्टोर करवा देना है. तो कैसे करवाओगे, यहाँ पे कलर स्पेस नेम, यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है, मैं अभी ब्लैक कलर करवा रही हूँ तो ब्लैक. ठीक है, और फिर यहाँ पे उसका 6 डिजिट हेक्स कोड जो है, और यू कैन से हेक्साडेसिमल कोड कलर का, वो यहाँ पे ऐड करना होगा. तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ब्लैक का है हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, 6 डिजिट, दैट इज 000000. सो आई हैव एडेड इट. ठीक है, अगर आपको याद नहीं है हेक्स कोड, देन दैट्स नॉट एन इश्यू. नेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन रिफर फ्रॉम दैट. ओके, बिकॉज सारे कलर्स के हेक्स कोड याद रख पाना अभी कैसे थोड़ा डिफिकल्ट है. तो ठीक है, एंड इन एंड्रॉइड आप कुछ भी लिखते हो तो ऑटोमेटिक सजेशंस आ जाता है, यू कैन चूज फ्रॉम दैट सजेशन. और अगर सजेशन नहीं आ रहा है एंड यू वांट सजेशन, देन कंट्रोल स्पेस उसकी शॉर्टकट की है. अगर कुछ लिखते हो तो देयर विल बी सजेशंस हियर, यू कैन सी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज strings.xml. कोई ऐसे स्ट्रिंग है जो आप एप्लीकेशन में बहुत बार यूज कर रहे हो या फिर कुछ ऐड कर रहे हो, तो यू कैन ऐड दैट स्ट्रिंग ओवर हियर एंड आफ्टर दैट यू कैन access that string from your Java file and from your XML file. Same for colors. You like अभी हमने black color ऐड किया ना, तो we will access this color from our XML file. मैं अभी थोड़ी देर में आपको कैसे एक्सेस करना है बताती हूँ. ठीक है,
सेम फॉर स्ट्रिंग, चलो कोई स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ऐड कर रही हूँ, इसका नाम रख रही हूँ सपोज के, ठीक है। और टाइटल मैं दे रही हूँ कॉस्ट लैब कैपिटल, ठीक है। थोड़ी देर में देखते हैं इसका एक्सेस कैसे करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। फिर नेक्स्ट है स्टाइल। तो आपको स्टाइल के रिलेटेड कुछ चेंज करना है, देन यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, ठीक है। कुछ ऐड करवाना हो या वैसे कुछ। अब इसके अलावा हमारे एक और फाइल होती है, दैट इज r.java फाइल। ओके, तो इस फाइल में क्या होता है, आप जो भी मतलब क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स ले रहे हो, ठीक है। जैसे हमने कलर्स के अंदर अभी ब्लैक कलर ऐड किया, स्ट्रिंग्स के अंदर एक न्यू स्ट्रिंग ऐड की, तो वो सारे जो है ना ऑटोमेटिक इस फाइल में अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज ऑटो जनरेटेड फाइल r.java, उसके अंदर सारा अपडेट हो जाए। फिर आपको कैसे जावा फाइल में वो एक्सेस करवाना हो, एक्टिविटी की ये जो है सपोज मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल, तो वैसे कोई जावा फाइल में एक्सेस करवाना है वो रिसोर्सेज, ठीक है, देन यू कैन डू इट फ्रॉम दिस आर फाइल। जिन्होंने ऑलरेडी लाइक एंड्रॉइड पे काम किया है उनको शायद से पता हो r.id करके आप सर्च करते हो, राइट। सो बेसिकली r इज नथिंग बट दैट ऑटो जनरेटेड फाइल। और जिन्होंने काम नहीं किया है वो लोग डोंट वरी, we will use it, so you will get to know that what I'm trying to say। but अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि एक r.java ऑटो जनरेटेड फाइल बनती है जिसके अंदर आप ये जो सारे रिसोर्सेज है, ठीक है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे स्टेप बाय स्टेप ऐड हो जाती है वैसे ऑटोमेटिक। क्यों? बिकॉज आप उसे फर्दर आगे एक्सेस कर सको उसके लिए, ठीक है। सो दिस वाज द फाइल स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रॉइड। और हाँ, इसके अंदर एक ग्रेडल भी रहता है, तो ग्रेडल आपका ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रहता है, ठीक है। तो दिस फोल्डर विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर यू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ से कैसे आपका बिल्ड नंबर कौन सा है वो सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। जैसे कैसे यहाँ पे बिल्ड टूल वर्जन कौन सा है आपका, कंपाइल एसडीके वर्जन कौन सा है, मिनिमम एसडीके वर्जन कौन सा है, टारगेट एसडीके वर्जन कौन सा है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। फिर डिपेंडेंसीज कौन सी है आपके प्रोजेक्ट में, तो उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। ओके, फिर देखो ये अभी हमने एंड्रॉइड रखा हुआ है तो हमें नेसेसरी फाइल्स है वो दिख रही है। अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो दूसरी भी फाइल्स आपको दिखाई देगी, जैसे क्रेडल के दूसरे सारे जार फाइल्स और वो सब। राइट नाउ वी डोंट नीड टू सी ऑल दिस, सो हम एंड्रॉइड चूज करते हैं। जैसे फिर कैसे, सपोज ये क्लोज कर दिया, फर्स्ट एप्लीकेशन में जाओ, फिर ऐप में जाओ, इसकी बात करते हैं। वो हमारी जो जावा फाइल थी वो ऐप में जाओ, बिल्ड में जाओ, ठीक है, सॉरी बिल्ड नहीं, लिब्स में जाओ, मेन में जाओ, जावा में जाओ, और यहाँ पे आपको मिलेगी जावा फाइल। जो पूरा पाथ था ना वहां पे शायद आपको पाथ थोड़ा डिफरेंट लगे, दिस इज द पाथ इट इज गोइंग टू फॉलो, राइट। So this is the resource folder, right। पर अगर कैसे आपको इस तरीके से कैसे अनवांटेड फाइल्स नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हो आप कि जस्ट गो टू एंड्रॉइड ऑप्शन, ठीक है। इंटरनल फोल्डर्स, इफ यू डोंट वांट टू डू गो थ्रू ऑल दैट, ये पैकेज में सारा ऑप्शंस अवेलेबल है, देन जस्ट चूज एंड्रॉइड। अरे कौन सा चूज किया, यस एंड्रॉइड, ठीक है। तो जो नेसेसरी फाइल्स है, मतलब जो आप एडिट करने वालों एज ए बिगिनर, वही आपको दिखाई देगी।
Okay, now let's go to our XML file. तो देखो सबसे पहले हम ये वाला ट्राई करते हैं। ये जो स्ट्रिंग हमने ऐड की फर्स्ट लैब, ठीक है, वी वांट टू यूज इट इन आवर XML। तो वो कैसे करेंगे? अभी क्या है, वेलकम टू लैब, पर क्या आना चाहिए? फर्स्ट लैब। तो चेंज कहाँ से होगा? टेक्स्ट से होगा। तो आई एम रिमूविंग दिस वन। उसकी जगह पे क्या करेंगे हम? हमारा कोई भी ये रिसोर्स है, ठीक है, वैल्यूज के अंदर कलर है, स्ट्रिंग है, जो भी है, आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए यूज @ इनसाइड डबल कोट। आप @ यूज करोगे तो उसके रिलेटेड आ जाएगा। जैसे कैसे? अभी मैंने कौन सा बनाया था? टाइटल का स्ट्रिंग, तो @string/title, ठीक है। तो ये टाइटल क्या है? उसका नेम आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो टाइटल नेम है और ये उसकी वैल्यू है फर्स्ट लैब। so here you can see first lab, राइट। सेम तरीके से अगर मुझे अब उसका कलर चेंज करना है तो एंड्रॉइड कंट्रोल स्पेस दे रही हूं मैं, टेक्स्ट कलर, देखो फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया। और यहाँ पे देखो @color black, आई एम चूजिंग इट, सो नाउ यू कैन सी इट इज डार्क ब्लैक। पहले ग्रेइश था थोड़ा, राइट। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो, कलर का यूज कर सकते हो। ये कैसा है अभी कि हमने एक ही एक्टिविटी रखी है। मान लो आप पूरी एप्लीकेशन क्रिएट करो, उसके अंदर कुछ 10 से 15 एक्टिविटीज है, तो आप सब जगह पे कहाँ पे क्या बोलते हैं, हेक्स कोड लिखने जाओगे? अगर मैं यहाँ पे ब्लैक का हेक्स कोड लिखूँ ना, तो भी वो सेम हो जाएगा। अगर मैं इसके जगह पे उसका हेक्स कोड लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल #000000, तो भी हो गया, देखो ब्लैक। पर आप कितनी कितनी जगह पे हेक्स कोड लिखोगे? सो अगर मल्टीपल जगह पे सेम चीज, मतलब सेम कलर आपको एक्सेस करना है, देन दिस कलर फाइल इज प्रेफरेबल। ओके, सेम फॉर स्ट्रिंग। आपको कैसे मल्टीपल जगह पे यूज करना है, एट दैट टाइम दिस इज मोर प्रेफरेबल। ओके, अब इसके अलावा बचा है हमारा बॉटम पेन। बॉटम पेन के अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे कि लॉकेट अवेलेबल है, ठीक है। देन अगर आपको टू डू लिस्ट बनानी है तो आप बना सकते हो। टर्मिनल भी यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। एंड बिल्ड अवेलेबल है, तो जब भी आप रन करोगे वो बिल्ड होगा, तो उसके स्टेप्स यहाँ पे अवेलेबल है। एंड इन राइट हैंड साइड देयर इज इवेंट लॉग, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। सो दिस आर द ऑप्शंस अवेलेबल। देन बिल्ड वेरिएंट्स आपको चेक करने हैं, फेवरेट्स में कुछ रखना है तो रख सकते हो, स्ट्रक्चर आपको देखना है तो यहाँ पे अवेलेबल, लेआउट कैप्चर्स अवेलेबल है। सो दिस आर द few things which you should know about Android. Okay, तो मैंने ऑलमोस्ट तो मतलब बेसिक कवर करने का ट्राई किया है। एज अ बिगिनर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए वो चीजें, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड हाँ, मेन एक्टिविटी में जब आपने अभी कोई भी कोडिंग शुरू नहीं किया है तो सबसे पहले एक ही मेथड आएगी, दैट इज ऑन क्रिएट मेथड। आई होप यू रिमेम्बर दिस मेथड। हमने कल डिस्कस किया था थोड़ा बहुत इसके बारे में कि देयर आर मैनी मेथड्स इन एंड्रॉयड एक्टिविटी साइकिल लाइफ साइकिल, और जिसमें फर्स्ट मेथड है वो है ऑन क्रिएट। तो कोई भी एक्टिविटी रन होती है तो उसमें सबसे पहले कौन सी मेथड रन होती है? दैट इज ऑन क्रिएट, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हो, बाय डिफॉल्ट ऑन क्रिएट मेथड आ जाती है। ओके, ठीक है। किसी को कुछ डाउट या कोई क्वेश्चंस? टाइमिंग आपका कहाँ तक है?
ओके 3:30 नहीं 2:35 4 मिनट्स अभी नहीं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, क्या बोलते हैं, लेआउट और उसका वाला 2-3 मिनट में वो कवर कर लेते हैं, आफ्टर दैट यू मे लीव, ठीक है। ओके अब देखो, आपकी जो XML फाइल है ना, उसके अंदर किस तरीके से रहता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर XML फाइल, ओके। तो XML फाइल के अंदर एक कंटेनर जैसा रहता है, जिसे आप बोल सकते हो लेआउट। ये जो अभी मैं ब्लू कलर से बनाऊंगी, दैट इज नथिंग बट द लेआउट, ओके। दिस इज योर, जिसे व्यू ग्रुप भी बोल सकती हो। तो बेसिकली इट्स लाइक अ कंटेनर कि जिसके अंदर आप सारी चीजें रखो, ठीक है। और इसके अंदर हम अलग अलग कंट्रोल्स रखते हैं या व्यूज रखते हैं। जैसे आपने एक रख दिया यहाँ पे बटन, यहाँ पे एक रख दिया एडिट टेक्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर के पास से लेते हो उसके लिए, राइट। तो बेसिकली दिस टू नोन एज व्यू, या फिर आप कंट्रोल भी बोल सकते हो। ये जो है हमारा आउटर लेयर, दैट इज नोन एज लेआउट और व्यू ग्रुप। तो बेसिकली कैसा है कि आप कोई भी व्यू या कंट्रोल, आप जो भी बोलो, ठीक है, बटन है, एडिट टेक्स्ट है, वो ऐसे ही नहीं रख सकते। यू को कीप इट इनसाइड अ कंटेनर, जैसे यहाँ पे ये लेआउट है, ठीक है। तो बेसिकली लेआउट आर यूज्ड टू होल्ड दिस व्यूज, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स, जैसे ग्रिड लेआउट है, टेबल लेआउट है, हॉरिजॉन्टल लेआउट है, वर्टिकल लेआउट है, देन कंस्ट्रेंट लेआउट है, रिलेटिव लेआउट है। तो लेआउट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज एनी ऑफ द लेआउट। जैसे मैंने आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेआउट बताया, तो कैसे होगा, एक में आपका इस तरीके से लेआउट है कि एक कंपोनेंट फर्स्ट टैब में रखो, दूसरा कंपोनेंट दूसरे टैब में रखो, तीसरा कंपोनेंट तीसरे उसमें रखो, चौथा कंपोनेंट उसके नीचे वाले में रखो, लाइक दैट, ठीक है। एक इस तरीके से रहेगा कि लेफ्ट साइड से शुरू करके फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे रखो, सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे रखो, थर्ड कंपोनेंट ये वाली स्पेस में रखो, वैसे फोर्थ कंपोनेंट, फिफ्थ कंपोनेंट। टेबल लेआउट में कैसा रहेगा, बॉक्सेस अकॉर्डिंग रहेगा, फर्स्ट कंपोनेंट रखो, सेकंड कंपोनेंट रखो, थर्ड रखो, फोर्थ रखो, लाइक दैट, ठीक है। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज दिस लेआउट्स। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप घर पे कैसे वो सब्जी बनाने के लिए वो मसाले का डिब्बा रखते हो ना, राइट। तो कैसे हर एक की मम्मी अलग अलग तरीके से रखती है, राइट। किसी को ऐसा पसंद है कि सारी डिब्बी अलग अलग चाहिए मसाले की, मस्टर्ड है, देन क्या आता है, जीरा है, क्यूमिन सीड्स, राइट। तो सपोज कि मेरी मम्मी को ऐसा पसंद है, हर एक के लिए अलग अलग डिब्बी चाहिए, तो वो कैसे अलग अलग डिब्बी रखेगी हर एक के लिए। सपोज 3 ही मसाले रख रही हूँ चलो मैं, तो उन्होंने अलग अलग डिब्बियां रखी। अगर किसी को मम्मी मतलब किसी के मम्मी को ऐसा पसंद है कि कैसे उनको एक ही ऐसा कंटेनर चाहिए, वो राउंड वाला आता है या स्क्वायर वाला, जैसा भी आप कंसिडर करो, एक ही कंटेनर चाहिए, उसके अंदर कैसे अलग अलग कंपार्टमेंट से, कि एक में क्यूमिन रख दिया, एक में मस्टर्ड रख दिया, लाइक दैट, ठीक है। और सपोज अभी तीसरा भी एक ऑप्शन दे रही हूँ आपको, किसी को ऐसा चाहिए कि मेरे पास
कंटेनर तो हो बड़ा वाला एक, और उसके अंदर अलग अलग से छोटी छोटी डिब्बियां हो वैसे, और उसके अंदर फिर वो वही चीजें भरेंगे, क्यूमिन सीड है, मस्टर्ड है, ऑल द थिंग्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, किसी को इस तरीके से पसंद है, किसी को इस तरीके पसंद है, किसी को इस तरीके से पसंद है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी को ये पसंद है तो ये दो गलत है। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। तो सेम वे हमारा ये जो लेआउट है वो अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। अगर आपको कैसे एक बड़ा सा लेआउट लेने उसके अंदर अलग दूसरा लेआउट ऐड करना है, यू कैन डू दैट, यू कैन नेस्ट द लेआउट्स, ठीक है, वो गलत नहीं है, यू कैन डू ऑल द थिंग्स विच एवर यू वांट। पर हाँ एक चीज है, अगर एग्जाम में बोला है कि कैसे पर्टिकुलर यही लेआउट यूज करो, देन एट दैट टाइम यू हैव टू यूज दैट लेआउट, अदरवाइज यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ द लेआउट, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेआउट एंड व्यू, और आई कैन से लेआउट मतलब व्यू ग्रुप, जिसे आप व्यू ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है, लेआउट को। और ये हमारे जो कंट्रोल्स है उसे आप व्यू बोल सकते हो। तो व्यू एंड व्यू ग्रुप का डिफरेंस एंड क्या यूजेज होता है वो पता चल गया होगा, आई होप। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे खत्म करते हैं हमारा लेक्चर लैब, ठीक है। वो फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो तो कंप्लीट कर ही लेना। ये वाला जो है ना फर्स्ट, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो along with its all major Gradle SDK AVD etc, तो ये वाला कंप्लीट कर लेना। ये जो सेकंड वाला है जिसको आता है वो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी, ठीक है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप फर्स्ट वाला कंप्लीट करके आओ, एंड दिस वन इज ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू इन टीम्स, ठीक है। पर हाँ एक चीज ध्यान रखना कि आपका सब्जेक्ट कोड CS377 है, तो आपको उसका ही प्रैक्टिकल लिस्ट एंड सिलेबस फॉलो करना है, बिकॉज इसी टीम में कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स भी एडेड है, तो उनका भी सिलेबस ऐड किया हुआ है एंड उनका भी प्रैक्टिकल लिस्ट ऐड किया है। सो गलती से ऐसा ना हो कि आप उनका रिफर करें, ठीक है। ऑलरेडी इंस्टॉल है कि वो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट? क्या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है? तो आपने बोला ना फर्स्ट प्रैक्टिकल में इंस्टॉलेशन स्क्रीनशॉट हाँ डालने हैं। हाँ, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो, मैंने ना आपका ये जो टीम्स है ना उसके फाइल्स में एक इंस्टॉलेशन स्टेप्स करके फाइल रखी हुई है, सो यू कैन यूज दैट, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। फॉर फर्स्ट प्रैक्टिकल ओनली, बिकॉज कैसे कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ होगा, तो आप वो यूज कर सकते हो। एंड अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट लेके खुद का बना सकते हो फर्स्ट प्रैक्टिकल। Okay, your attendance is being recorded, so now if you wish to leave the meeting you can. Okay ma'am, thank you ma'am.